Good morning. First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. You know that the pandemic is in the very danger phase now. We have lost our very great teacher, VPD sir, due to this COVID. That's why the Monday class is suspended on his accounts, on his remembering. So I want a 2 minute silence from you all. Okay, maintain 2 minute silence. Okay, for remembering our great teacher. Maintain a 2 minute silence, please. Okay, class, silence is over now. So, class, my appeal to you all that please don't go outside if it is not required. Okay, you'll submit your fees and continue the classes. But my appeal is that if it is not required, you don't go outside. And if you go outside, follow all the SOPs. Wear the mask, use a sanitizer, make a proper distance. Okay, this is the only way we have to beat Yes, sir. this I will. pandemic. Okay. Okay, sir. This is my gentle appeal to you all. You all are the future of our country. Okay? Please be safe yourself and your family as well. Okay? Yes, sir. Okay, this is my humble request to you all. Now, moving on. Let's back to the business. Yesterday, I mean, my previous class, what topic I was discussing? I was discussing Sir, about I have array. sent Array. second chapter in your personal number. Okay. I'm discussing the array. The topic was array. Okay. So I want to know how many of you still remember what is array? Do you remember it? Sir, array is a collection of various variables. Various variables, nahi. Various digits. Okay, collection of various digits. Okay. So I'll give you the example as well. I mean, I'll give you the notes. In the notes, have you write down the notes on your computer fair notebook? Students, Yes, chapter sir. number 2 notes. Write down. I'm asking to you, beta. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So an array is a type of variable that is used to storing similar data, similar type of data. Data means if you talk about a number, it will collect the similar numbers. If you talk about the digits, it will collect the similar digits. If you talk about the floating numbers, it will collect the floating numbers. Okay. If you talk about the strings, it will collect the strings. I was told you that how to how to how to in QBasic how to initiate this array. So what keyword I was use? Tell Dim. me. Tell me. Dim. Dim. Okay. And what is the and after that what I will use the variable name. Suppose I will take the variable Yes, name sir. n. Okay. And I will take after that I Size. will define in the bracket I will decide suppose 5. So that means this is an array which can contain 5 values. It is an array which can contain 5 values. Okay. Which contain 5 values. Okay. 5 values. 5 values. This
This dim means it is contain only numeric values. Okay, I'll give you the example. Suppose this is an array. That means in this array, can you tell me what is the name of this array? N. N. Name is N. And this value, subscript value is, this is the location number N1. This is location number N1. ये location number कौन सी है? N1. N1. ये location number कौन सी है? N1. ये वाली कौन सी है? N2. N1. ये कौन सी है? N2. Sir, N2. ये वाली कौन सी है? Sir, N3. ये वाली कौन सी है? N4. और ये वाली कौन सी है बच्चों, लास्ट वाली? N5. N5. ओके, Yes, sir. Yes, sir. देखिए सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दी 40, यहाँ पे वैल्यू कर दी 50, यहाँ पे वैल्यू कर दी 30, यहाँ पे वैल्यू कर दी 60 और यहाँ पे वैल्यू कर दी 80. गॉट इट? गॉट इट? Yes. तो एरे Yes, की sir. वैल्यू क्या है? Yes, एरे की sir. वैल्यू, एरे 3 में वैल्यू कौन सी है? Sir, 30. 30. एरे 3 30. में वैल्यू कौन सी है? 30. तो दिस इज वैल्यू, दिस इज Sir, 30. वैल्यू. Value. ये वैल्यू है. ये array. एरे 5 में क्या वैल्यू है? Sir, 80. 80 है ना? ओके, वेरी गुड. दिस इज वैल्यू. एरे 5 में वैल्यू क्या है? 80. 80. गॉट इट? दिस इज वैल्यू Sir, 80. ये कहलाती है वैल्यू और ये क्या कहलाते हैं? सब्सक्रिप्ट वैल्यू. ये कहलाती है सब्सक्रिप्ट वैल्यू. क्या कहलाती है? सब्सक्रिप्ट वैल्यूज. N1 N2 इज सब्सक्रिप्ट वैल्यू. ओके, गॉट इट? एक बात और Yes, याद रखिएगा sir. तो आप लोग याद रखिएगा, क्यू बेसिक में एरे स्टार्ट होती है 1 से. कहां से स्टार्ट होती है? 1 से. बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, C++, जावा, पाइथन, इन सब में जो एरे स्टार्ट होती है वो 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होती है. क्या स्टार्ट होती है? 0 से. इसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0. इसकी स्टार्ट होती है 1 से. क्यू बेसिक की स्टार्ट कहां से होती है? 1 से. मगर क्यू बेसिक के अलावा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है किससे स्टार्ट होती है? 0 से. पर क्यू बेसिक में स्टार्ट होती है 1 से. ठीक है? 1. ठीक है? एक प्रोग्राम करके दिखाता हूं मैं आपको. एक प्रोग्राम मैं करता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं. ठीक है? एक प्रोग्राम में Yes, sir. एंटर the 5 numbers in array and check the index.
एरे का नाम बताइए, क्या रखेंगे बच्चों? सर क्या नाम रखेंगे? ए ए A. ए कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं? 5 ही रखते हैं, अभी ज्यादा नहीं Eight. रखते हैं, 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, ठीक है? अच्छा 6 रख लेते हैं, कोई दिक्कत? पर लेकिन रैम में 5 नो है। सर No, sir. कुछ भी No, वैल्यू रख sir. दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 रखनी, 5 रख दो, यस यस कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है? यस सर यानी 5 वैल्यू के लोकेशन रिजर्व हो गए, ठीक है? अब यस वैल्यू एंटर कराएंगे, यूजर से वैल्यू एंटर कराएंगे। तो यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए कौन सा लूप यूज करते हैं? फॉर लूप। कौन सा यूज करते हैं? फॉर For लूप। loop. फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to कहां तक कितनी वैल्यू स्टोर करनी है? 5। कहां तक लूप चलाएंगे? 5 तक। कहां तक लूप चलाएंगे? 5 तक। इसके बाद इनपुट कराते हैं, एंटर 5, एंटर नंबर्स, नंबर एंटर कराते हैं। नंबर एंटर कराने के लिए मैंने इनपुट की कमांड दी, इनपुट कमांड दी मैंने एंटर नंबर, इसके बाद सेमीकोलन डाल करके वैल्यू एंटर करा ली। एरे में वैल्यू एंटर कराने के लिए ए ऑफ आई, क्या डालेंगे? ए ऑफ आई, ठीक है? इसके बाद कराएंगे नेक्स्ट आई, ठीक है? इस तरीके से 5 वैल्यूज एंटर हो जाएंगे। Yes, क्या हो जाएंगे sir. एंटर? 5 वैल्यूज, ओके? कॉपी करो, प्रिंट कराओ, यस सर प्रेजेंट करा प्रिंट कराओ द वैल्यूज और क्या वैल्यू होंगी? ए ऑफ आई, I. I. and the index is I. ठीक है? यहां पर करा देते प्रोग्राम एंड। इस लाइन में ध्यान से देखिएगा, मैंने प्रिंट करा दी वैल्यू ए ऑफ आई की, यानी ए की 20, 30, 40 वो वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, और किस इंडेक्स पे क्या वैल्यू ये भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? प्रोग्राम रन कराता हूं मैं आपको। हो गया? स्क्रीन शेयर करता हूं, स्क्रीन दिख रही है बच्चों? तो ब्रैकेट के अंदर तभी आउटपुट स्क्रीन दिख रही है बच्चों? No, sir. नहीं दिख रही? No sir. आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख रही अभी भी? No, sir. सर दिख आ रही गई. दिख गई। दिख गई? चलिए ठीक है। पहले 5 Yes, नंबर sir. बताइए बच्चों, जल्दी से 5 नंबर बताइए। सर 10 10, एक मिनट, 10 और दूसरा 8 8, तीसरा 22 22, चौथा 34 पांचवा 59 59। 5 नंबर हैं, ठीक है? 1, 2, Yes, 3, sir. 5 नंबर हैं। ये बताओ 59 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? इंडेक्स वैल्यू 5 होगी ना, फिफ्थ पोजीशन पे है आई ना? होगी सर। 5। 8 की इंडेक्स वैल्यू क्या Yes, होगी? Yes, sir. 8 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 2 2। देखिए I. सही है, सही है। The value of Yes, 10, sir. the index value is 1. The value of 8, index value is 2. The value of 59, index value is 5. समझ आई बात? Easy difficult? यस सर। Easy difficult बताइए, यस सर। बताइए, जल्दी बताइए। Easy difficult?
इजी। चलिए ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, अब आपसे कुछ और पूछूं? अब आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं ऐसा? बच्चों, कैन यू मेक दिस प्रोग्राम? कृष्णा, गौतम, कैन यू मेक दिस प्रोग्राम? Yes. Yes, sir. एक काम करो, जल्दी से प्रोग्राम बनाओ। एक प्रोग्राम बनाओ जल्दी से। राइट अ प्रोग्राम in QBasic to enter 10 numbers and print the value and index value as well। ठीक है, जल्दी करो, राइट अ प्रोग्राम, जल्दी बनाओ इस प्रोग्राम को। Write a program to enter 10 numbers. डू इट नाउ। सब बच्चे जल्दी सेंड करिए। Yes sir, बना रहे हैं। मैं 2 मिनट ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ, जल्दी बनाइए बेटा। Yes sir. To 10 and हो गया बच्चों? no sir लिख रहे हैं। जल्दी करिए, जल्दी करिए। बन गया सर, सेंड करिए बच्चों। भेज रहा हूँ।
I have sent you, sir. बन गया, भेजिए। और बच्चे ट्राई भेज करिए दिया, जल्दी से। गुड गुड, सही है सर। सही है। और बच्चे ट्राई करिए। किसी को समझ में नहीं आया क्या बच्चों? अमन, कृष्णा, शिवानंद, समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया। बताइए, समझ में नहीं आया क्या बच्चों? सर आ गया। तो जल्दी भेजिए ना मुझे। अभी सर मेरे पास अभी कॉपी नहीं, सर मैं बाहर हूँ, चलो कोई बात मैं नहीं, ठीक क्लास है, ले रहा हूँ सर। ठीक सर है। नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे बनता है। एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम to find, to enter 5 numbers, and find the sum and average of all numbers, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. कैसे करेंगे? Yes, sir. मैंने राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 5 numbers and find the sum of There sum and average average. of all numbers, ठीक है? कर सकते हैं? Yes, sir. करिए लीजिए। गुड कृष्णा, गुड बेटा। जल्दी करिए। Yes, sir. कर मैं रहा अभी हूँ अभी करता हूँ वाला। प्रोग्राम, है ना, मैं शेयर करता हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही देखते रहिएगा, और जो बच्चे कर रहे हो करते रहिएगा, ठीक है? तो सबसे Yes, पहले sir. मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पूरा प्रोग्राम। सबसे पहले मैसेज डालते रहे, एंटर 5 numbers and find sum and average, ठीक है? डिम नाम का डिम में मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एस नाम का, सम नाम का, ठीक है? उसमें 5 वैल्यूज के लिए मैं स्टोर कर देता हूँ स्पेस, ठीक है? गॉट इट? सो सम, सबसे पहले मैं 5 नंबर एंटर कराऊंगा, तो इनपुट करता हूं मैं, इनपुट एंटर 5 नंबर्स, सबसे ऐसे नहीं करेंगे, सबसे फॉर लूप लगा लेंगे। मुझे पता वैल्यू एंटर कराने के लिए फॉर लूप यूज करते हैं, राइट? फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 to 5, यहां कराते हैं इनपुट एंटर 5 नंबर्स, एरे एस ऑफ, एस नाम का मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, एस नाम का वेरिएबल, उसमें आई वैल्यू डाल दो, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आई कर दो, ठीक है? नेक्स्ट आई, इसके बाद 5 नंबर जब एंटर करा लिए हैं, तो फिर उसको मुझे ऐड करना होगा ना, सम। तो मैं एक पहले वेरिएबल बना देता हूँ सम नाम का, ठीक है? सम इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, ये एक वेरिएबल है,
सम इज अ वेरिएबल, सम इज अ वेरिएबल, मैं कमेंट दे देता हूं, डिजाइन फॉर Sir, I have sent you. हाँ I have sent you, sir. सेंड इट। Yes, sir. बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। सम नाम का वेरिएबल ले Yes, लिया sir. और एक वेरिएबल लेता हूँ एवरेज नाम का, एवीजी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, शॉर्ट में एवीजी ले लेता हूँ, उसका सम शुरुआत में 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो एवरेज एवीजी इज अ वेरिएबल used to store average, ठीक है। वेरिएबल की स्पेलिंग सही कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद फिर से फॉर लूप चलाते हैं हम। फॉर I is equals to 1 to 5, फिर नेक्स्ट फिर यहाँ पे करते सम, सम नाम का वेरिएबल बनाया, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एस ऑफ आई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई, एवरेज के लिए कर दो एवरेज, एवरेज इज इक्वल्स टू एवीजी इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो प्रिंट कराओ, सम ऑफ sum of 5 numbers are, कितना होगा। सम प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या वेरिएबल बना रखा है, सम कराता हूँ प्रिंट, ठीक है। इसके बाद एवरेज प्रिंट कराने के लिए प्रिंट कराता हूँ जल्दी, शॉर्ट में जल्दी से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम बच जाए मेरा। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, मैंने क्या वेरिएबल एवरेज किसमें स्टोर किया है, एवीजी नाम के वेरिएबल में, एवीजी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और प्रोग्राम एंड करता हूं मैं, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले रन करा के दिखाता हूं, फिर ड्राई रन करता हूं, ठीक है। रन कराने के लिए सबसे पहले मैं रन कमांड पे जाता हूं। ये देखिए प्रोग्राम रन हो रहा है। बच्चों आउटपुट स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? No, sir. नहीं दिख रही, ठीक है। अच्छा जल्दी से 5 नंबर बताइए, जल्दी से जल्दी से 5 नंबर बताइए, छोटे छोटे नंबर बताइएगा ताकि जल्दी से हम पता कर सकें। 28. अरे बहुत बड़े बड़े नंबर बता रहे हो, जैसे 2, 3, 5, 1, 6, 10. टोटल इनका सम कितना हुआ? 5 नंबर हो गए, 1, 2, 3, sir. 4, 5, इनका सम Yes, कितना sir. हुआ? 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 1 11, 6 17, टोटल कितना हो गया? 17। तो इनका सम हो गया 17 और इसका एवरेज कितना हो गया? 17 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो 17 को जब 5 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.4। ये आंसर आ रहा है? ये आंसर Yes, sir. आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। Yes, प्रोग्राम sir. समझ में आया नहीं समझ में? ये बताइए पहले, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है दिख रहा प्रोग्राम? Sir, आ गया। समझ में आ गया? Yes, चलो sir. मैं ये वाला Yes. प्रोग्राम
ये वाला प्रोग्राम आप लोग इस प्रोग्राम को फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ठीक है, यस सर। इस प्रोग्राम में कल ये प्रोग्राम आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? तो जो बच्चे क्लास में हैं उनको बता देता हूँ, टुमारो आई विल आस्क दिस सेम प्रोग्राम, ओके? और मैं कल स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करना सिखाऊंगा, ठीक है? स्ट्रिंग एरे में वैल्यू स्टोर करना सिखाऊंगा, ठीक है? और कल जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा, ओके? थैंक यू क्लास, ठीक है, थैंक यू क्लास। यस सर, थैंक यू सर।